1 year Bible reading plan, Revelation 11 chapter, Micah 4 chapter, 5 chapter. हम पढ़ेंगे 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय, मीका की भविष्यवाणी की पुस्तक 4 और 5 अध्याय हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से. रिदान इखम ओसाला रबाहसा सदीन इखम ओशकर खतीन इरल्ला रबाह अकासियान तुखम आसे वहतीन अरल्ला रबाह अकासी कतकिन बा ओसील रहासा Geb okatin rahalarba kasi antukamba asa sadin allarba akasi ukamta al bahasi itetkin baase zat in abo ose eseketin rahalarba kasa. हम पढ़ेंगे रेवलेशन 11 चैप्टर. पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी मदद करो. हम पिता परमेश्वर जितना आप चाहते हो वैसा हमारा जीवन जिए. पिता परमेश्वर जैसा वचन आपका कहता है वैसा हमारा जीवन रहे. हम आपके बिना परमेश्वर ना रहे. हम विनती करते हैं हमें मार्ग भटकने मत दीजिए, हमारी दिशाएं भटकने मत दीजिए. हमें पिता तेरा स्रोत मिले, तेरा आनंद मिले और पिता जो तू चाहता है वही हमारे जीवन में पूरा हो. नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर. आमीन आमीन आमीन. चैप्टर 11. The two witnesses prophesy, etc. First verse. And there was given me a reed like unto a rod, and the angel stood, saying, Rise and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein. But the court which is without the temple leave out, and measure it not, for it is given unto the Gentiles, and the holy city shall they tread under foot 42 months. And I will give power unto my two witnesses, and they shall prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth. These are the two olive trees and the two candlesticks standing before the God of the earth. And if any man will hurt them, fire proceedeth out of their mouth and devoureth their enemies. And if any man will hurt them, he must in this manner be killed. These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy, and have power over waters to turn them to blood, and to smite the earth with all plagues as often as they will. And when they shall have finished their testimony, the beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them and kill them, and their dead bodies shall lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. And they of the people and kindreds and tongues and nations shall see their dead bodies 3 days and a half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves. And they that dwell upon the earth shall rejoice over them, and make merry, and shall send gifts one to another, because these two prophets tormented them that dwelt on the earth. And after 3 days and a half the Spirit of life from God entered into them, and they stood upon their feet, and great fear fell upon them which saw them. And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. And the same hour was there a great earthquake, and the 10th part of the city fell, and in the earthquake were slain of men 7,000, and the remnant were affrighted, and gave glory to the God of heaven. The second woe is past, and behold, the third woe cometh quickly. And the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven, saying, The kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. And the 24 elders which sat before God on their seats fell upon their faces and worshipped God, saying, We give thee thanks, O Lord God Almighty, which art and wast and art
are to come, because thou hast taken to thee thy great power and hast reigned. And the nations were angry, and thy wrath is come, and the time of the dead, that they should be judged, and that thou shouldest give reward unto thy servants the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great, and shouldest destroy them which destroy the earth. And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament, and there were lightnings and voices and thunderings and an earthquake and great hail. Thank you, Jesus. Ribanti kabaraha shrebeke siralarba kasi. Asisi azaz ikam osilaraha asinte ellarbaha asiskin ba asiyantu kambarasa. Radin aki alloroboho okotkin ba aselarbaha kasiyantu kambasa. हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय पहले वचन से। 2 गवाह पहले वचन से। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दे दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अतः कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। परंतु 3.5 दिन तक के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। 7वीं तुरही 15 वचन से आगे। जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य के काम में लाकर सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं।
तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसको वाचा का संदूक दिखाई दिया। और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, ये वचन हमारे समझ में उतर कर आए और हम तेरे लिए जीवन जी पाए, तेरे आज्ञा पालन में और तेज बन पाए। ऐसा परमेश्वर अभिषेक कर, हमको अनुग्रह कर, हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।